वेलकम टू सोशियो वर्स हब। बच्चों, ये हम SSLC कर्नाटका बोर्ड का पासिंग पैकेज कर रहे हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू ओनली द हिस्ट्री पार्ट। चैप्टर वाइज वी आर गोइंग टू हैव द पासिंग पैकेज। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। इन दिस दे हैव गिवन फैक्टर्स दैट हेल्प टू डिस्कवर new sea route to India. So, the first point for this is the capture of Constantinople, taxes levied by the Turks. Trade became unprofitable. To break the monopoly of the Italy, the invention of compass, astrolabe and gunpowder. This is the answer for this. इसमें क्या बोल रहे हैं? कॉन्स्टेंटिनोपल जो सिटी है, जो प्रेजेंट बेजेंटेनियम में है, वो आके टर्क्स के द्वारा कैप्चर करना। दूसरा आके है कि हेवी टैक्सेस जो है उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया। तीसरा है इसकी वजह से जो ट्रेड था अरब्स और इटालियन मर्चेंट्स का अनप्रॉफिटेबल। टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ इटाली, ये क्या है? मोनोपोली मीन्स सिंगल लीडरशिप। हियर दे आर सेइंग टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ Italian traders. Now next is the invention of compass, astrolabe and gunpowder. These are the three different instruments that was used by the Portuguese sailor, that is Vasco da Gama, for the help of new sea route to India. Till here it is clear? I hope first question and the answer of this passing package is clear. Next we are going to move on to the explain dual government. Dual means two. Dual is nothing but, here it is dual means two. So we are going to have Robert Clive implemented dual government. This is one of your MCQs also. ये आपका जो choose the correct answer है उसका एक question भी है। Robert Clive implemented dual government and British had the right to collect taxes. अब ये बहुत important है। Next point is Nawab have to pay power over administrative issues like justice and others. Now over here you can know what do you mean by administrative? Administration is nothing but administration or administrative issues. Means it is nothing but managing. जो भी मुगल्स के नवाब थे उनको सिर्फ ये अथॉरिटी दी गई थी कि वो सिर्फ अपने रियाया जो है किंगडम उनको मैनेज करेंगे और उसके हिसाब से जितने भी प्रॉब्लम्स है किंगडम्स के जो लोगों की उनको जस्टिस देंगे। दैट्स ऑल। दे टुक ओवर द टू थिंग्स, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। वन इज इन डुअल, द फर्स्ट वन इज इन डुअल गवर्नमेंट the British took over the right to collect the taxes. The second one is the Nawab had the power to administrative issues like justice and others. Move on to the next. See, this is a very important question. It carries for 3 or 4 mark. See the reasons and results of Battle of Plassey. Remember this, 1757. 1757. The first they have given the reasons and the results. These are very important questions, children. The next question is also important. See, it is vice versa. Either you will get this for 3 mark or this for 3 mark. Now let us start the reasons. यहाँ क्या हुआ? जो दस्तक था, right to collect the taxes. It is a license to collect taxes. Misuse of दस्तक हुआ। फिर mending of fort without permission. Mending of fort without the permission of the नवाब. नवाब के परमिशन के बगैर उन्होंने फोर्ट को क्या किया? मेंट करना शुरू किया। ब्लैक रूम ट्रेजेडी है, आपने पढ़ा होगा। इसमें क्या हुआ? छोटे से रूम में उन्होंने क्या किया? बहुत सारे सोल्जर्स को डाल के बंद किया, जिसकी वजह से सफोकेशन की वजह से सोल्जर्स की यानी ब्रिटिश सोल्जर्स की ऑफिसर्स की मौत हो गई। फिर expansion policy of the British. Now we know that we have seen the expansion of the British policy with 2 policies. एक है subsidiary alliance, दूसरा है doctrine of lapse. तो एक दस्तक will be your key points.
Mending of the fort will be the next point. Black Room tragedy will be the third point. Expansion of policy of the British. Next, when we are going to see this, you can see the results. What are the results? The war brought out the immorality, disunity and greedy of Indians. अभी इसमें क्या है, हमारे हिंदुस्तानियों में क्या नहीं था? एक था डिसयूनिटी, जो हम एकता नहीं थे. ग्रीडी, हमें बहुत सारा ग्रीडीनेस था. इमोरालिटी, हम मॉरली वी वर नॉट दैट मच लॉयल टू आवर कंट्री. ये यहाँ बताया जा रहा है. फिर रिजल्ट्स में है ये. फर्स्ट देखिए, इमोरालिटी, डिसयूनिटी एंड ग्रीडी ऑफ इंडियंस. नेक्स्ट आता है पेइंग वॉर इंडेमनिटी टू द ब्रिटिश. इंडेमनिटी बोला गया तो इसका वॉर पेनाल्टी है, जो एक वही देखिए, this is started in 1757. At that time only they paid lakhs together as a war indemnity to the British. मीर जाफर कौन था ये? He was the military general of the Nawab Sirajuddaulah. Mir Jafar became the Nawab of Bengal. The company gained exclusive rights to trade in Bengal. ये हुए 4 points. Reasons and results. You should remember this. In reasons 4 points, in results 4 points. Let us move on. Immediately after this, when the Nawab मीर जाफर ही बिकेम नॉट एबल टू, जब वो अपने जितने भी डिमांड्स थे ब्रिटिश ऑफिसर्स के जब पूरा नहीं कर सका, तो मीर जाफर को अपने नवाब का पोस्ट खोना पड़ा. फिर मीर कासिम को हिज नेफ्यू, इसके नेफ्यू को पोस्ट पे लाए और तभी उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया. शाह आलम द सेकेंड अकॉर्डेड दीवानी राइट्स ओवर द बंगाल. इन्होंने क्या किया, इसमें शाह आलम को दीवानी राइट्स ओवर द बंगाल शाह आलम ने ब्रिटिशर्स को दिया. ही गेव अवे ऑल द राइट ओवर द बंगाल फॉर द एनुअल फी 26 लाख रुपी. अब 26 लाख रुपयों में इन्होंने बंगाल का जो भी अथॉरिटी या राइट है उन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दिया. Sirajuddaulah had to give fine of 50 lakh rupee. As I said in this, they paid lakhs together as a war indemnity. He also had the war indemnity and paid 50 lakh rupee for waging the war against the British. Next is the company paid pension to Mir Jafar's son and took over the entire administration of Bengal. इन्होंने मीर जाफर को जो बंगाल का नवाब बनाया मीर कासिम के बाद, उन्होंने उसका जो सन था यानी बेटा था उसको उन्होंने क्या नहीं दिया, नवाब नहीं बनाया, उसको उन्होंने पेंशन पे करना शुरू किया. हाउ डिड मर्तंडा वर्मा चेक द डच? ही रेस्क्यूड हिज डायनेस्टी फ्रॉम डच. फर्स्ट पॉइंट, इन्होंने अपनी जो डायनेस्टी थी त्रवणकोर वो आके डच से बचा लिया. नेक्स्ट इज he shifted his capital from Thiruvananthapuram to Thiruvananthapuram. He shifted his capital to Thiruvananthapuram. कोलाचल से त्रिवनंतपुरम को शिफ्ट किया. Occupied pepper growing areas. फर्स्ट मर्तंडा वर्मा ने क्या किया कि जितने भी उनके टेरिटरी में त्रिवनंतपुरम में जो पेपर ग्रोइंग एरियाज थे उसको ऑक्यूपाई किया डच के क्लचेस से, यानी डच लोगों से बचाने के लिए. नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, ऑक्यूपाइड ट्रेडिंग प्लेसेस ऑफ डच. इन्होंने डच के जितने भी ट्रेडिंग प्लेसेस थे उसको ऑक्यूपाई कर लिया. किसने? मर्तंडा वर्मा ने. ही डिफीटेड डच इन द वॉर. जब लड़ाई हुई जंग के मैदान में डच को हार दी. फिर इन्होंने क्या किया, कैप्चर्ड नेदुमंगला एंड कोट्टारका ट्रेडिंग सेंटर्स. जो डच के अंडर चले गए थे, कौन सा, नेदुमंगला और कोट्टारका, उन्होंने क्या किया, फिर से हासिल किया. एंड ऑफ द डच रूल.